Suppose two lines given, how to find their angle bisectors? L1, let us take L1, ये आपका L2. So there are two angle bisectors. One is called acute angle bisector, another one is the obtuse angle bisector. This is one bisector which is it may be acute or obtuse, depends upon इसके बीच में क्या angle है. And another is there are two bisectors. L1 given, L2 given, how to find out L3 and L4. Let line L1 is the A1x plus B1y plus C1 equal to 0, and L2 A2x plus B2y plus C2 equal 0. Then how to find out angle bisectors? Then angle bisectors are A1x plus B1y plus C1 upon under root, जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले थे ऐसे A1x plus B1y plus C1 upon under root A1 square plus B1 square is equal to plus or minus A2x plus B2y plus C2, sorry, upon under root A2 square plus B2 square. So taking plus sign and simplify करेंगे. We have one by angle bisector. That may be acute or may be obtuse. Okay. Taking positive sign, we have one bisector, and negative sign, another bisector. Okay. So one of them is
is an acute angle bisector, and other one is obtuse angle bisector. Now question is how to decide which one acute and which one obtuse. Which one acute and which one obtuse कैसे decide करोगे? तो आपको L1, L2 given, इसमें आप taking positive sign and taking negative sign, you are getting two more lines, that is L3 and L4. तो L1, L2 से कोई एक लाइन सिलेक्ट कर लो. Take any one line out of L1 and L2 and another line L3 and L4. ठीक है. Let us consider L1 and L3. ये दोनों मैंने कंसीडर किया और ये दोनों के बीच में एंगल में चेक करूंगा. What is the angle between these two? ठीक है. If this angle less than 45 degree, ये एंगल 45 से कम होगा तो ये जो एंगल होगा ये 90 से कम होगा, तो ऑटोमेटिक दिस विल बी acute angle. Suppose ए एंगल मोर देन 45 हो गया, देन ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा. ये acute होगा तो ये obtuse होगा, ये obtuse होगा तो ये acute होगा. That is one method. Another method is the, क्या करो, कोई एक लाइन सिलेक्ट करो जो बाइसेक्टर मिल रहा है, दोनों से कोई एक सिलेक्ट करो. नहीं, L1, L2 से कोई एक लाइन सिलेक्ट करो. Let us take L2. L2 से कोई एक पॉइंट लाइन के ऊपर सिलेक्ट करो. Select any one point as you like. Select one point on your L1 or L2. Select any one point on your line as you like. तो उधर से क्या करो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो टू बोथ द लाइंस, बोथ द बाइसेक्टर्स. यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है. तो ये दोनों से तो एक लेंथ बड़ा होगा, एक लेंथ छोटा होगा. जिसका लेंथ कम होगा वो साइड पर आपको एक्यूट मिलेगा, जिसका लेंथ बड़ा होगा वो साइड पर आपको ऑब्ट्यूस मिलेगा. ये भी मेथड यूज कर सकते हो. और एक भी मेथड बताऊंगा. फर्स्ट राइट, how to find out acute and obtuse angle bisector. To determine
Let angle bisector L3 and L4. Select one line from L1 and L2. Let us take L1 equal to 0. Select one line from L3 and L4. Let us take L3 equal to 0. Then find tan theta. Tan theta कैसे निकालोगे? m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. Just find out this thing. Okay. If tan theta less than 1, exact angle नहीं चाहिए. If tan theta less than 1, then L3 will be acute angle bisector. If tan theta more than 1, then L3 will be if tan theta less than 1, then L3 will be acute angle bisector and L4 obtuse angle bisector. Now, if tan theta more than 1, then L3 will be obtuse and L4 acute angle bisector. In this way, you can find out your acute and obtuse angle bisector. ये आपका फर्स्ट मेथड. Second method also is there. Select a line from L1 and L2. Let us take L1. Choose a point on L1 and draw perpendicular to both lines L3 and L4. Let perpendicular distance are P1 and P2 respectively. If P1 less than P2, then L3 will be
acute, and L4 will be obtuse angle bisector. Now if P1 greater than P2 हो गया, then L3 will be obtuse and L4 will be acute angle bisector. ठीक है, ये समझा? एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, जस्ट राइट डाउन।
इंस्टाग्राम पे बहुत सारे Question is find acute and obtuse angle bisector of 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 3 equal to 0. तो देखते हैं आंसर क्या होगा. एंगल बाइसेक्टर्स होगा आपका 3x minus 4y plus 1 upon अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना होता है 5 is equal to plus or minus 12x plus 5y minus 3 upon under root 12 square plus 5 square 13. Taking positive sign, इसको मैं L1 मान रहा हूं, इसको मैं L2 मान रहा हूं. Taking positive sign, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 13 into 3 39x minus 52y plus 13 इस साइड आप 5 मल्टीप्लाई करो is equal to 60x plus 25y minus 15. तो इसको सेपरेट करो x टर्म y टर्म और कांस्टेंट टर्म. ये सबको राइट साइड ले लेता हूँ 60x minus 39x 60x minus 39x 21x 25y प्लस इस साइड आ जाएगा तो प्लस 52y 77y minus 15 minus 13 minus 28 इक्वल 0. आप चाहो तो डिवाइड बाय 3 कर सकते, सॉरी 7 कर सकते हो. तो 3x प्लस 7y minus 4 is equal to 0. सर 11 Yes. 3x plus 11y आएगा. Sorry. Yeah. So this consider this one as L3. Then taking negative sign. मतलब आपका लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगा, राइट साइड का सबका साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो 39x minus 52y plus 13 is equal to minus 60x minus 25y plus 15. इधर मैंने नेगेटिव साइन सिलेक्ट किया तो सब में साइन चेंज हो जाएगा. तो राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आओ पूरे. तो ये 60 प्लस 39 99x माइनस 52 प्लस 25 कितना होगा माइनस 27y अगेन 13 माइनस 15 माइनस 2 इक्वल टू 0. तो ये आपका होगा L4. ठीक है. आप ये भी देखोगे एंगल बाइसेक्टर्स जो L3 एंड L4 हमेशा परपेंडिकुलर होगा, है कि नहीं. क्योंकि ये एक एंगल L1 L3 का एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, मतलब 180 को बाइसेक्ट कर लिया तो इनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा. एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. चाहो तो वो नोट कर सकते हो. You can make it note. Angle bisectors are perpendicular to each other.
ठीक है, आप इधर भी वेरीफाई कर सकते हो इधर दे आर परपेंडिकुलर और नॉट। इसका स्लोप कितना, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस लाइन, माइनस a by b मतलब माइनस 3/11। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, माइनस 99 बाय माइनस 27 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कितना होगा 11/3। व्हाट इज योर m1 इंटू m2, क्या है minus 3/11 into 11/3 which is -1. That's why L1, L3 and L4 perpendicular to each other. Okay. अच्छा, अब डिसाइड करेंगे ये जो L3 and L4 मिला which one acute and which one obtuse। तो एक लाइन सिलेक्ट करो, L1 L2 से कोई सिलेक्ट लाइन करो आजू लाइन जो छोट कोएफिशिएंट जिसका कम है उसके साथ जाओ। तो आई एम सिलेक्टिंग L1, L1 is equal to 3x minus 4y plus 1 is equal to 0 and L3 L4 से कोई एक लाइन सिलेक्ट करो। आई एम सिलेक्टिंग L3, L3 आपका 3x plus 11y minus 4 is equal to 0। इसका स्लोप आपको मिलेगा 3/4, इसका स्लोप minus 3/11। लेट एंगल बिटवीन दिस टू, लेट अस टेक L1, ये आपका L3, इनके बीच में एंगल थीटा, just find out tan theta। now tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 इसका मैग्नीट्यूड मैंने मॉडुलस which is 3/4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/11 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मतलब 9/44। इसका एलसीएम 44 हो गया, ये 33 प्लस 12 45, ये 44 माइनस 9 35। ओके, तो क्लियरली आपका न्यूमरेटर मोर देन डिनोमिनेटर, तो ये मोर देन 1 होगा। आज tan थीटा मोर देन 1, दैट इम्प्लाइज आप जो L3 सिलेक्ट किए L3 विल बी obtuse angle bisector and L4 acute angle bisector होगा। ठीक है, ये आपका obtuse होगा, ये आपका acute होगा। So also you can use second method। ठीक है, how to get मतलब second method कैसे है, ठीक है। तो L1 आपका क्या था, L1 was 3x minus 4y plus 1 equal 0। L2 was
12x प्लस 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। L3 आपको मिला, ये एंगल पर मत जाओ, इट इज 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल 0। L4 आपको मिले 99x माइनस 27y माइनस 2। ठीक है, आप कोई L1 L2 से कोई एक लाइन सिलेक्ट करो, किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं? इधर सिलेक्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी हम L1 के साथ जा चुके हैं। हम सिलेक्टिंग L2। L2 के ऊपर कोई एक नॉन पॉइंट रखो। नॉन पॉइंट के लिए आपका बेस्ट मेथड कोई एक को 0 कर दो, x को 0 करो, y का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं तो y को 0 करो, x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, नहीं तो आप और कुछ सिलेक्ट कर सकते हो, तो इकन आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये 3 ले रहा हूं, -3 माइनस, नहीं ये 3 ले रहा हूँ, x की जगह 3 ले रहा हूँ, y को 7 ले रहा हूँ, हो जाएगा ना, -7। x 3 रखा, y को -7 रखा, 12 इंटू 3 36 माइनस 35 माइनस 1 सेटिस्फाइड। तो ए पॉइंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, क्या सिलेक्ट करना चाहोगे? x को 0 कर दो, y 1/5 हो जाएगा, वो भी ले सकते हो। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू L3 एंड L4, दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ P1, कंसीडर कर रहा हूँ P2। तो व्हाट इज द P1 लेंथ? P1 लेंथ कितना होगा? ये पॉइंट लाइन के ऊपर डालेंगे, कितना मिल रहा है? 0 -4/5 प्लस 1 अपॉन 3² प्लस 4² का रूट ओवर। which is 1/5 upon 5, so 1/25. What is the P2 length? 0,1/5 से ये लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो फर्स्ट वन 0, सेकंड वन -27/5 -2 अपॉन 99 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 27/5। तो ये हो जाएगा 10 -37, मतलब अपॉन, ये दोनों से आप 9 कॉमन ले, मतलब 9 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। 99 एंड 27 से 9 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, बाहर आ जाएगा तो 9 होगा, और आपका अंदर रहेगा 11 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 37/5 इंटू 9, और आपका ये 121 130 का रूट होगा। This is the P2. Now which one greater, P1 or P2? तो P1 P2 में एक कंपेयर कर दो, आपको पता चल जाएगा which one greater, 1/25 and 37/5।
5 into 9 into 130 का रूट ओवर, एक 5 कैंसिल होगा, इधर 5 बचेगा, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 into 130 का रूट ओवर कितना आ जाएगा, 11 पॉइंट समथिंग। ओके, और ये साइड में आपको 37 into 5, तो ये 11 पॉइंट समथिंग मतलब 99 पॉइंट समथिंग कंसिडर, and this side is the 37 into 5 मतलब clearly less than. Okay, तो P1 ऐसे कैसे हुआ? P1 लेस देन P2, तो P1 के साइड पर आपका L मतलब ये एक्यूट होना चाहिए, बट इधर कैसे ये हुआ? हम कहीं पे मिस्टेक किए, -4/5 L3 क्या था? L3 मैंने गलत लिखा, दोनों L1 L3 सेम लिख लिया, मैं वही बोल रहा हूँ, ऐसे कैसे होगा? L3 आपका 3x plus 11y minus 4, this is your L3, तो P1 चेंज होगा, P1 हो जाएगा 0 into 3 11/5 minus 4 upon वही में 3 square plus 11 square root over, which is 9, ये -20 plus 11 9/5 into under root 130, ठीक है। Now P1 and P2, 9/5 under root 130, ये आपका 37 upon 5 into 9 into ये, this cancelled, 5 also cancelled, 9 into 9 कितना आ रहा है? 81, this side 37, तो 81 greater than 37 मतलब आपको क्या मिला? P1 greater than P2, आज P1 greater than P2, that implies what? आपका L3 होगा obtuse angle bisector, and P2 सॉरी L4 होगा acute angle bisector, जो हमें ऑलरेडी मिला था। यही मिला था ना, L3 the obtuse and L4 acute, वही मिला आपको। राइट, समझा कि नहीं?
Find out acute angle bisector of lines 15x plus 8y minus 2 equal to 0 and 6x minus 8y minus 3 equal to 0.
मिला? Who got the answer? किसी को नहीं मिला? मिला किसी को? फिफ्टीन एक्स प्लस 8y minus 2 upon 15 square plus 8 square का root over, that is 17, is equal to plus or minus 6x minus 8y minus 3 upon under root 6 square plus 8 square, that is 10. Taking positive sign, you have 150x plus 80y minus 20 is equal to 17 into 6, 102x, 17 into 8,
150x minus 100 248x 80 plus 136 216 minus 20 plus 31 equal to 0. Taking negative, इसका स्लोप कितना है? -48 upon 216 divisible by 16 होता है क्या? नहीं, divisible by 6 8 36 again divided by 4 minus 2.9 taking negative, आपको मिलेगा 150x plus 80y minus 20 is equal to minus 102x plus 136y plus 51. तो ये हो जाएगा 252 x minus 56y आपका minus 71 इक्वल टू 0. इसका आप स्लोप चेक करोगे, ये डेफिनेट 9/2 होगा. ओके, 252 अपॉन 56 ये डेफिनेट 9/2 होगा. डिविजन बाय 8 डिविजन बाय 8 नहीं, डिविजन बाय 4 डिविजन बाय 7 करेंगे तो दोनों का ये मिल गया. तो आप L1 और L3 से ये L1 इसका स्लोप कितना -15/8 नहीं तो L2 ये आपका L2 इसका स्लोप 3/4. ठीक है, इसका स्लोप 3/4. तो ये स्लोप के साथ इस चले मतलब ये सिलेक्ट करो, ये आपको L3 ले रहा हूँ. दिस वन L3 दिस वन L4. सॉरी सर L3 का वैल्यू रॉन्ग है. L3 का वैल्यू रॉन्ग है. दिस वन हाँ सर 48 अपॉन इसका बात कर रहे हो? हाँ सर 48 150 minus 102 48 80 plus 136 216 minus 20 plus 51 31. मिस्टेक क्या है? सर M1 के कैंसिलेशन में 48 डिवाइड बाय 216. अच्छा, डिवाइडेड बाय 6 तो 8/36 क्या प्रॉब्लम है? 6 में मैंने डिवाइड किया. 38 इंटू 36 इंटू 6 216 नहीं होता है क्या? ओके सर. इधर गलत होता तो इधर मैच नहीं करता ना.
इधर स्लोप मैच कर रहे हैं, मतलब इसका इसको परपेंडिकुलर हो रहा है तो करेक्ट है। बाई चांस इधर मिस्टेक होगा तो इधर मैच नहीं करेगा। L2 मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ, आई एम सिलेक्टिंग L2 एंड L3, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आपका L3, ये आपका L4 ले लो। तो L2 का स्लोप कितना? L2 का स्लोप 3/4। L3 का स्लोप L3 का स्लोप -2/9। ठीक है, इनके बीच में एंगल निकालेंगे tan थीटा। tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। तो 27 plus 8 35, ये 30, clearly more than 1। तो क्या होगा? L3 will be obtuse angle bisector। That means L3 means आपका 48x plus 216y, not x here, plus 31 equal to 0 is an obtuse, but मुझे acute चाहिए था, hence L4 मतलब आपका जो लाइन मिला था 252x minus 56y minus 71 equal to 0 is an acute angle bisector। ये चाहिए था, तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। One more concept is angle bisector containing origin। कौन से बाइसेक्टर साइड पर ओरिजिन है? इसका मेथड होता है आपका, लेट अस टेक L1, A1x plus B1y plus C1 equal to 0। L2 is the आपका A2x plus B2y plus C2 equal to 0। तो फर्स्ट मेक C1 greater than 0 and C2 greater than 0। Now consider new equation as L1 and L2। ठीक है, then
and a1x plus b1y plus c1 upon a2 no, under root a1 square plus b1 square. इसमें जो प्लस माइनस था ओनली टेक प्लस साइन है, ओनली टेक प्लस साइन a2x plus b2y plus c2 upon under root a2 square plus b2 square. तो ये जो बाइसेक्टर मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन we have bisector containing origin. प्लस साइन लेने के बाद जो बाइसेक्टर आपको मिलता है दैट बाइसेक्टर इज द बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन. जो बाइसेक्टर मिलेगा वही साइड पर आपका ओरिजिन रहेगा. वही एग्जांपल को मैं ले रहा हूं जो हम पहले एग्जांपल लिए थे. Find bisector containing angle bisector containing origin of lines. ठीक है. What is the C1 here? This is a1x plus b1y. आपका लाइन क्या था? 3x minus 4y plus 1 equal to 0 and लाइन दिया गया 12x plus 5y minus 3 equal to 0. तो इसका C1 पॉजिटिव है तो इसमें कुछ नहीं करेंगे. इसका C1 नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करेंगे. तो क्या करेंगे? एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो. दैट इंप्लाइज आपका 12x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0. इसको अभी L2 मानो और आपका आज इट इज 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0. इसको आप मानो L1. ये अभी L1 L2 थोड़ा L1 आज इट इज रहा, L2 चेंज हो गया. अब इसमें इसका बाइसेक्टर निकालेंगे तो 3x माइनस 4y प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस साइन रखना पड़ेगा माइनस 12x माइनस 5y प्लस 3 अपॉन 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट 30. बस सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर. तो आपका 39x माइनस 52y प्लस 13 इज इक्वल टू माइनस 60x माइनस 25y प्लस 15 implies 99x माइनस 27y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ये जो बाइसेक्टर मिला ए बाइसेक्टर साइड पर ओरिजिन आपको रहेगा. Just write down.
Done. Next is pair of straight line. त्याच्यात तुमचा शिंका टाकलाय तुम्ही. What is pair of straight line? It is the product of two straight lines. Okay. So if you multiply one straight line with another straight line, you'll get pair of straight line. A1x plus B1y plus C1 into A2x plus B2y plus C2 equal to 0. इसका product format is called pair of lines. तो once you multiply these two, आपको x square term मिलता है. You'll get y square term, you'll get xy term, x term, y term, and constant term. So after simplification, you'll get format like this: ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus equal to 0. But दो स्ट्रेट लाइन को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा इक्वेशन आता है. बट ऐसे इक्वेशन लिखने से दो स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे मिलेगा उसका कोई गारंटी नहीं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कॉल्ड सेकेंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई. जैसे कि टू लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है. ओके. बट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देने से वो फैक्टराइज होता है, ऐसा जरूरी है क्या? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा. ये पक्का. बट मैं कुछ भी इक्वेशन दे दूंगा, कैन यू फैक्टराइज दिस वन? ये भी क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक. ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रहा है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्वाड्रेटिक आ रहा है. बट इसको आप फैक्टराइज कर पाओगे क्या? तो लाइक दैट दो स्ट्रेट लाइन का मल्टीप्लिकेशन आपको सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई देता है. बट कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई लिखोगे वो ऐसे दो फैक्टर्स बन जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं. तो इसके लिए एक कंडीशन होता है. वो कंडीशन जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होने के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. लाइक दैट इसमें भी ऐसा एक कंडीशन होता है. दिस इज कॉल्ड सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई. और सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ x and y called pair of lines only when delta is equal to 0. It is not discriminant. Delta equal to 0, where delta is the ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus H square. आपका डेल्टा ये होना चाहिए ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus H square. ये जब 0 होगा then this second degree equation is called
pair of lines. ठीक है. If delta is not equal 0, तो pair of lines नहीं होगा. वो केस में बहुत सारे कुछ आ सकता है. ये सर्कल हो सकता है, ये पैराबोला हो सकता है, ये एलिप्स हो सकता है, ये हाइपरबोला भी हो सकता है. उसके लिए फिर अलग से कंडीशन होगा और इसको बोलते हैं कोनिक सेक्शन. कोनिक में सब कुछ आता है, सर्कल भी आता है, पैराप्लाइंस भी बनता है, बट पर्टिकुलर ये तीनों को कोनिक सेक्शन में डाला जाता है. So there are two types of paraplanes. एक होता है homogeneous, एक होता है non homogeneous. This equation is called non homogeneous. Okay. ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal 0. If delta is equal to 0, then the let this is equation star. If delta is equal to 0, then equation star is called pair of lines. Pair of lines बोलो और pair of straight lines बोलो. If it is pair of straight line, तो उनके बीच में कोई intersection point ही होगा. How to get their intersection point? Their intersection point is the, ऐसा नहीं कि हम दो स्ट्रेट लाइन निकालेंगे फिर इंटरसेक्ट करेंगे. Intersection point is the HF minus BG upon AB minus H square, comma HG minus AF upon AB minus H square. ये होता है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके. कभी आगे ऐसा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप चेक करोगे इफ थोड़ा बड़े होते हैं तो इफ यू नो एब्सिसा आपको ऑर्डिनेट मिल जाता है, नहीं तो ऑर्डिनेट हो तो आपको एब्सिसा मिलता है. कहीं आगे भी ऐसा कुछ यूज होता है. आपका ए बी इंटरचेंज होता है, ए बी हो जाता है, बी ए हो जाता है. एफ जी इंटरचेंज होता है, एफ जी हो जाता है, जी एफ हो जाता है. एच में कोई चेंजेस नहीं होता है. एच एंड सी ये दोनों में कोई चेंजेस नहीं होता है. देखो यहाँ पे एच एफ, इसमें हुआ एच जी. एच आज इट इज एच रहा, एफ चेंज हो गया जी. बी जी चेंज हो गया ए एफ. ए बी चेंज होगा बी ए. एच में कोई चेंजेस नहीं. दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट. And write down.
For what value of lambda does the equation represent a pair of lines? Also find the intersection point. और ये फॉर्मूले को आप डिटरमिनेंट फॉर्मेट में याद रखना चाहोगे, डेल्टा ऐसे भी लिख सकते हो, और आपका डेल्टा ये होता है, डिटरमिनेंट के हिसाब से रखना चाहोगे ऐसे होता है एबीसी एफ जी एच, मतलब एबीसी आपका डायगोनल, इक्व डिस्टेंस एलिमेंट्स आर इक्वल, एच एच इक्वल इधर जी एफ, ये भी डिटरमिनेंट के हिसाब से याद रखना है, रखो, नहीं तो ऐसे रखना है। क्वेश्चन इज द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा ए पेयर ऑफ लाइंस होगा, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
कटिंग चला गया। Just compare your this equation with ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus equal 0 and find out your abc fgh. फिर फॉर्मूला डाल दो। After simplification, your lambda is the -10, and for point of intersection, again use your formula and simplify. You'll get this answer: -25/9, -271/162.